Hello, my name is VIIIth. I am working as assistant professor in textile technology department in MLB Textile Engineering College. In this video I will give a lecture on few of the topics related to multifiber spinning. Hello to my dear students. Hopefully you are taking all the precautions required during the isolation. In the last class, physical class of MFS, which was held in LT1, I don't remember the date. The topics which were discussed was of blending, related to blending and blending indices. We have already discussed about the changes needed to be done in blow room and card when we are running polyester or blends in place of cotton. That is, what are the settings which are needed to be changed in blow room and card when we run polyester in place of cotton in cotton spinning systems. In this presentation we are going to learn about the major changes needed to be done in draw frame, speed frame and ring frame. So this particular presentation is related to only draw frame. Before coming to draw frame, one of the topics which was related to blending was left to discuss was the types of blending. In types of blending we already discussed that there are two types of blending: blow room blending and draw frame blending. In blow room blending, further there are two types of blending: manual blending and machine blending. Manual blending, it means stack blending. Stack blending क्या होता है? MBO से we open the bale with the help of MBO, and then the opened polyester fiber comes to the bin, or the open fiber, any man-made fiber comes to the bin, और bin में layering होती है, एक layer फिर दूसरा layer फिर तीसरा layer, ठीक है. After layering of the fibers in the bin, and then afterwards the conditioning of the oil, the application, after the application of oil and lubricants on the fiber and conditioning, then the bin, from the bin the fibers are vertically cut. ठीक है, एक के बाद एक लेयर ऊपर लग गया, उसके क्या करते हैं हम ऊपर वाले लेयर से नहीं निकालते फाइबर, हम क्या करते हैं वर्टिकली कट करते हैं. वर्टिकली कट करते हैं मतलब ऊपर से लेके नीचे तक फ्रंट हिस्सा जो है हम बाहर निकालते हैं. तो उससे क्या होता है, इट गिव्स अ ब्लेंडिंग डिले टाइम. देयर इज, बिकॉज क्या है, पहले नीचे वाला लेयर भरता है, उसके बाद फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, ऐसे करके ऊपर तक जाता है. तो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द फर्स्ट लेयर एंड द लास्ट लेयर. तो उस टाइम गैप में हम ब्लेंडिंग डिले टाइम देने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकली कट करते हैं. वर्टिकली कट करने से क्या होगा, जब हम फाइबर निकालेंगे, so that mass of the bulk of the fiber will contain the fiber which was from the first layer as well as from the last layer. ठीक है, तो इस तरह से हम वर्टिकली कट कर करके वो फाइबर निकालते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो भी मशीनरीज है उसमें हम फीड करते हैं. तो इससे क्या हो जाती है, ब्लेंडिंग हो जाती है प्रॉपर. और दूसरा क्या है, ये इसी को स्टैक ब्लेंडिंग या मैनुअल ब्लेंडिंग बोलते हैं. Generally where it is being used in critical blends like 95/5, because 50/50 is much easier to make a yarn of 50/50 blend. but skewed blend जिसको बोलते हैं या critical blends जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एक फाइबर का percentage is very high and other fiber percentage is very low. So in case of application are melange or skewed blends. Second is machine blending. मशीन ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, बेसिकली we feed pieces of bales of different fibers to different hoppers. क्या है, बेसिकली ब्लेंडर्स है. ब्लेंडर्स में जो है बेल ओपनर लगे हुए हैं, और उनके पास एक मीटरिंग डिवाइसेस होता है. तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, देयर इज अ इंक्लाइन लैटिस एंड देयर आर हॉपर्स.
तो उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को हम ट्राई ब्लेंड भी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को वो मीटरिंग के थ्रू जो हम उनको इनपुट दे देंगे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ब्लेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइबर, उसके हिसाब से वो इट विल वे एंड इट विल फीड टू द इंक्लाइन लैटिस, तो वहां ब्लेंडिंग हो जाएगी। So this was all about the type of blending in blow room. Now comes the draw frame. ठीक है, तो as we already know the objective of drawing or draw frame क्या है, straightening and parallelization of fibers, reduction in medium and long term irregularity present in card sliver, reduction in short term irregularity, blending of component fibers by doubling of sliver। ठीक है, तो बाकी तो हम जानते ही हैं about the draw frame, but here the main point is the blending of component fibers of by doubling of sliver। sequence of draw frame blending generally क्या है, जब हम draw frame blend करते हैं तो there are two different lines of fiber, one is for polyester, two different blow room lines of fiber, one is for polyester and another is for cotton। पॉलिस्टर में जैसे बेल लगाया हमने, ओपनिंग करी, कार्डिंग करी, ठीक है, एक लेवलर होगा प्री ड्रॉ फ्रेम। ठीक है, कॉटन के केस में क्या है, ओपनिंग, क्लीनिंग, कार्डिंग, कोमिंग के बाद कोम स्लाइवर आएगा। कहाँ पे आएगा, इन द फर्स्ट ड्रॉ फ्रेम विच इज कॉल्ड द ब्लेंडर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेशियो डिसाइड करते हैं कि कितने स्लाइवर जो है अकॉर्डिंग टू द ब्लेंड, कितने स्लाइवर हमें पॉलिस्टर के लेने हैं और कितने स्लाइवर हमें कॉटन के लेने हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ब्लेंड रेशियो, तो इसको हम ब्लेंडर इसलिए बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अगले ड्रॉ फ्रेम में जाएगा जहां पे उसको हम बोलते हैं ब्रेकर। ठीक है, ये भी एक ड्राइंग है। उसके बाद फिर से वही स्लाइवर जो है थर्ड ड्रॉ फ्रेम में जाता है जिसको हम बोलते हैं फिनिशर। देन अगेन इट गोज टू, आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम फिनिशर इट विल गो टू नॉर्मल स्पीड फ्रेम एंड रिंग फ्रेम। ठीक है, एज इट इज, जैसे कॉटन जाता है। अब ये जो ब्लेंडर है, ब्लेंडर के बाद ब्रेकर है, फिर फिनिशर है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लेंडिंग हम एक साइड एक ड्रॉ फ्रेम लिया, डबल हेडेड ड्रॉ फ्रेम, उसके एक किनारे पे हमने ब्लेंडिंग करी और फिर वही स्लाइवर निकाल के हमने दूसरे किनारे पे, दूसरे साइड पे, दूसरे हेड पे फीड किया, जिसको हम ब्रेकर एज अ ब्रेकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस ऑफ मशीन 1 2 3 चाहिए अपने को 1 और 3 से भी काम हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ मशीन अगर कम करनी है, डबल हेडेड मशीन है, तो आप ड्रॉ फ्रेम को एज अ ब्रेकर, ब्लेंडर एंड ब्रेकर बोथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है नंबर ऑफ हैंग्स कैसे डिसाइड करते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, कि जनरली स्पिनिंग इंडस्ट्री में हाउ इट इज डिसाइडेड। तो इसकी कैलकुलेशन सिंपल सी कैलकुलेशन है। सपोज करो कि ब्लेंडर ड्रॉ फ्रेम में 8 स्लाइवर हम फीड करते हैं। ठीक है, देयर इज अ ऑप्शन ऑफ फीडिंग ऑफ 8 स्लाइवर्स। तो 8 स्लाइवर्स में अगर मुझे पॉलिस्टर कॉटन का ब्लेंड चाहिए 30-70, तो 8 पे आप अगर कैलकुलेट करोगे 30-70 के रेशियो से, तो 2 और 6 स्लाइवर बनेगा। ठीक है, 30 और 70 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 और 6 जनरली, तो पॉलिस्टर के 2 स्लाइवर्स होने चाहिए और कॉटन के 6 स्लाइवर होने। कैसे, 8 इंटू 0.3/100 0.3 कर दो, 30/100, 8 इंटू 70/100 कर दो। तो आपको अगर आप राउंड फिगर लोगे, यू टेक अ राउंड फिगर, देन द वैल्यू विल कम 2 and 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉटन जो हैंक है दैट इज फिक्स्ड, वो फिक्स रखते हैं। हम क्या करते हैं कि लेवलर का जो है ड्राफ्ट जो है वी चेंज द ड्राफ्ट ऑफ द लेवलर डिपेंडिंग ऑन द ब्लेंड रेशियो। ठीक है, तो कॉटन का जो कोम स्लाइवर है जिसका हैंग फिक्स है, सपोज करो कि 125 NE दैट इज इक्वल टू 4.7 किलोटेक्स। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमें क्या हैंग रखना चाहिए। अभी हमें रेशियो पता है कि स्लाइवर पॉलिस्टर के 2 होने चाहिए, कॉटन के 6 होने चाहिए, बट हाउ टू कैलकुलेट द व्हाट शुड बी द हैंग ऑफ द पॉलिस्टर स्लाइवर। तो क्या करेंगे हम, उसको हमने मान लिया कि एग्जैक्ट ब्लेंड लाने के लिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, हम कुछ भी हैंग नहीं ले सकते। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी विल सपोज द हैंग ऑफ द पॉलिस्टर स्लाइवर इज x किलोटेक्स। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 into x डिवाइडेड बाई 2 into x प्लस 6 into 4.7।
दैट इज इक्वल टू 30/100। कैसे? रेशियो जो वेटेड एवरेज जैसे निकालते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 0.3। तो कैलकुलेट करोगे आप इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो x विल कम एज 6.04 किलोटेक्स, जिसको हम लिख सकते हैं 0.0977 Ne। तो जो ये है, ये अगर आप 2 स्लाइवर लगाते हो 6.04 किलोटेक्स के, साथ में आप 6 स्लाइवर लगाते हो 4.7 किलोटेक्स के, तो आपका जो ब्लेंड का रेशियो है दैट विल कम 30/70, ठीक है। अब डिपोजिशन ऑफ स्लाइवर, ये कैसे फीड करते हैं हम ड्रॉ फ्रेम में? डिपोजिशन कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, पॉलिस्टर कॉटन, फिर पॉलिस्टर, फिर कॉटन कॉटन, फिर पॉलिस्टर, इस तरह से। अगर 6 फीड कर रहे हैं हम तो इस तरह से करेंगे हम। और अगर हम 8 फीड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पॉलिस्टर कॉटन, पॉलिस्टर कॉटन, पॉलिस्टर कॉटन कॉटन पॉलिस्टर, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि हम रैंडमाइज करेंगे। दूसरा हम ये करते हैं कि पॉलिस्टर को वी कीप इट ऑन द आउटसाइड सो दैट टू प्रिवेंट द स्प्लिटिंग ऑफ कोम्ड कॉटन, ठीक है। तो जो कोम कॉटन होता है, इसमें इंटरफाइबर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो इसमें स्प्लिटिंग की टेंडेंसी रहती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कॉटन को पॉलिस्टर के बीच में सैंडविच करते हैं। तो इसीलिए कॉटन को हम बाहर नहीं रखते, तो पॉलिस्टर को बाहर रखेंगे और इसको रैंडमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ड्राफ्टिंग सिस्टम, ड्राफ्टिंग सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है वाइल रनिंग पॉलिस्टर और ब्लेंड्स? डिफ्लेक्शन, जो प्रेशर बार का जो कॉन्सेप्ट है डिफ्लेक्शन, वो क्या करता है, इंटरफाइबर कोहेजन इंप्रूव करता है। तो हम वहां पे डिफ्लेक्टर यूज करेंगे या प्रेशर बार यूज करेंगे। इंटरफाइबर कोहेजन बिटवीन मींस द कोहेजन बिटवीन द पॉलिस्टर एंड कॉटन। ड्राफ्ट बैक ड्राफ्ट जो है वो क्या करते हैं, 1.3 से 1.7 रखते हैं जनरली, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन, क्रीम, फिनिश। ऑप्टिमम ब्रेक ड्राफ्ट जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिनिमम यू परसेंटेज। रोलर सेटिंग को कैसे रखते हैं हम? रोलर सेटिंग इज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द लॉन्गर कंपोनेंट। अगर हम कॉटन और पॉलिस्टर को ब्लेंड कर रहे हैं तो इट शुड बी बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द पॉलिस्टर, ठीक है। जनरली क्या है, फ्रंट जोन जो है L+5 mm, बैक जोन L+10 mm, ठीक है। ये जस्ट एक थंब रूल है। इसको आप यू कैन मॉडिफाई इट। कैसे मॉडिफाई करोगे कि मिनिमम इवेननेस, अनइवेननेस मिनिमम हो, उस सेटिंग पे आप चलाओ जिसमें फाइबर रप्चर हो, यार्न की स्ट्रेंथ अच्छी हो और स्लाइवर का जो ऊस्टर परसेंटेज वो मिनिमम हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? रोलर लैपिंग, जब आप पॉलिस्टर रन करते हो ड्रॉ फ्रेम में तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है? रोलर लैपिंग से वेस्टेज बढ़ता है, प्रोडक्शन लॉस होता है और फॉल्ट जनरेशन होता है, ठीक है। Why there is roller lapping? Because of static charge generation on the top rollers and the fiber surface. Solution क्या है? Solution we had already discussed the proper level of fiber finish and number 2 maintaining suitable atmospheric conditions. Factors क्या है जिसके ऊपर डिपेंड करता है ये रोलर लैपिंग? हायर इंटरफाइबर फ्रिक्शन, ठीक है। इंटरफाइबर फ्रिक्शन है, क्रीम। अब ये इंटरफाइबर फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? क्रीम पे, लेंथ पे, लेवल ऑफ फिनिश पे। जितना हायर इंटरफाइबर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ फाइबर गेटिंग कॉट बाय द रोलर सरफेस इज लेसर, ठीक है। तो जितना लो ओरिएंटेशन होगा उतना हायर इंटरफाइबर फ्रिक्शन होगा। दूसरा जो फैक्टर क्या है, फाइबर रोलर एडिशन, ठीक है। फाइबर टू रोलर एडिशन, तो बहुत ज्यादा अगर हम निप प्रेशर रखेंगे तो भी फाइबर टू रोलर एडिशन होगा, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा फाइबर में तो भी तो फाइबर। surface condition of the rollers. For running polyester fiber we need harder cords. The cords hardness would be more than 80° sore. Since the softer cords will result in larger nip area, so the fiber to the cords or the rubber, the fiber to the roller or the rubber cohesion will increase. Therefore we need harder cords. Cleaning of rollers, second action what we should do in draw frame regarding the roller condition of the rollers or the type of rollers. Cleaning of the rollers by organic solvent should be done to remove finish and moisture. And buffing means grinding of the rollers. So buffing needs to be done. Varnishing is application of
chemical on the surface of the rollers to improve its smoothness, to reduce the roughness of the rollers. Application of talc powder, irradiating cords with UV light, which is also known as bulkalization. UV light, when we treat the roller surface with UV light, it tends to oxidize the uneven surface of the cords or the rollers, and it makes the surface smooth. The roller diameter also should be higher. The circumference should be twice the staple length of the fiber. The higher the roller diameter, the lesser will be the tendency of roller lapping. Now comes the roller weighing, basically roller weighing. So due to the absence of short fiber and higher interfiber friction, the drafting load should be higher by 20 to 50% than cotton. Since we need higher drafting force to draft the fibers, because the fibers are not short and they have a higher interfiber friction, that's why we need higher drafting load. Problems: roller lapping and collar tube choking. Roller lapping we had already discussed. Collar tube choking, the reason for collar tube choking is that partly the static charge generation and mainly the deposit of tint and fiber finish. Static charge generation, how it contributes? Basically, when the sliver passes through the coiler tube, the static charge causes repulsion of the fibers and it increases the volume of the sliver. So the higher the sliver volume, it has got the tendency to choke the coiler tube. So that's why what is the recommendation? Larger diameter of the coiler tube should be used. Suppose we are using certain coiler tube in cotton, then if we want to run polyester fiber, then we need a coiler tube of larger diameter. So therefore, what are the remedies while running polyester fiber? With respect to the coiler tube choking, reduce the sliver weight. Diameter, if we reduce the diameter of the sliver, then obviously, or we can use the larger diameter coiler. Same thing basically. The second one is to maintain a proper atmospheric condition, and third one, cleaning of the passage inside the coiler tube with suitable sandpaper and cloth, because there is a tendency of deposition of tint and fiber finish. So we need to regularly clean the coiler. Thank you.